Okay, ladies and gentlemen, the recording has started, and the topic which we are covering today is the access network. The topic which we are covering today is the access network. But before going into the network access network topic, I want to explain to you the difference that we have service providers. Like for example, in Peshawar, if you look at, we have PTCL here, we have Nayatel here, we have Nayatel here, and then we have Strong Fiber here, and many definitely the wireless or mobile operators are there as well. But I have taken the example of only the three service providers which are wired. Okay, and for example, I am the user of PTCL, so I need to connect to the PTCL. Someone may be a user of Nayatel, someone may be the user of Strong Fiber, and in this way, Babar probably joined us today for the first time. So welcome, Babar. So this network, which is from the home or small office or subscriber office, we also call it, from the subscriber office to the service provider, definitely we need a network here. And that network is called access network. Okay, now these ISPs then connect to one another. These ISPs connect to, for example, this is a cloud, and all of these ISPs are connected to the cloud. And in this way, the user number one is connected to user number two, the user number two is connected to user number three. And on this end, for example, we have Facebook, we have YouTube, we have Gmail, we have many other like Cisco, like Siemens, and many more. So this is the basic. G, any question? Okay, if there's no question, basically this is the network which is called the backbone. This is the backbone, but we are not interested to study this part. We are interested to study the access network, this part. Okay, I hope you got my point, that what is the access network. Now this access network can be for the small users or can be for the large enterprises. So if it is for a small user, sorry, if it is for a, if it is for a small user like your home, like my home, so in this case we have different options. Like number one, we can have the modem. We can have a modem which is of 56 kilobit per second, the latest one, which were available maybe 20 years back. Then came number two, the ADSL. Sorry, DSL, not SDSL. It is ADSL. Then we have the third option is the cable network. Cable network can be used to give you the access network. And access network provide you connectivity to the ISP. As I said earlier, it provides you the service provider, internet service provider. So these are the technologies which I have mentioned. They can be used to connect the subscriber, which means the person like you, to the internet. Okay, the next one can be the PON, passive optical network. The next one can be the AON, and the next one can be number 6, can be the mobile data. And last example can be, the 7th choice can be the satellite, and I will explain to you that it is rarely used, satellite. So these are the 7 methods, gentlemen, which we can use to give access to the user, to an ordinary user, to a small user, to a small office. While the big offices, which we call as the enterprises mostly use number 1, lease line. The number 2, SDSL, DSL, or number 3, it can be the satellite as well. Okay, gentlemen, do you got the title? Do you got the question, the answer to your question? कि हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है एक्सेस नेटवर्क्स, और इस एक्सेस नेटवर्क्स में
हम ये देखना चाहते हैं कि किन किन तरीकों से हम सर्विस प्रोवाइडर तक दोनों, जो मैंने लेफ्ट पे भी लिखा और राइट पे भी लिखा, यानी कि ये साइड और ये साइड काम एक ही करती है. इट प्रोवाइड एक्सेस टू द यूजर टिल द सब्सक्राइबर ऑफिस, सॉरी टिल द सेंट्रल ऑफिस. जी, एनी क्वेश्चन? Hello, gentlemen, do you have any question? No, sir. No, sir. Okay, Babar. Babar, do you have any question? Mansoor, Ilyas, do you? No, sir. Thank you. No, sir. Okay, so then let me explain to you then further. So, gentlemen, how this and how is the board? Is it better from the one which you use in university? वहां भी टीचर आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा होता है इसी तरह, and you are getting the same here, and it will be, it is recorded and you will be getting it. It will be inshallah without any noise. Fine. There is something in the chat. No questions, sir. Okay, Fawad Shah is saying no question. Okay, Fawad Shah, thank you for the giving me the feedback. Now I start from number one. And number one is modem. Number one is how this modem were used maybe 20 years back. ठीक है, बस to give you an idea कि किस तरह ये काम करता है, बाकी कोई इसमें issue नहीं है. So I move it further. So I am going to the modem part. Gentlemen, this modem, which I explained, which I am just explaining, it means number one, I'm showing it red now. Modem explanation is the following. The modem was, here is your, first I explain you the basic PSTN. Before this, I explained to you the PSTN, Public Switching Telephone Network. क्या इलियास आपने कभी PSTN इस्तेमाल किया है? सर नाम तो पहली दफा सुना. नाम ही पहली दफा सुना है. What is about you, senior guy, Mansoor Sarwar, Sayyid Mansoor साहब? सर बस नाम अभी सुना. नाम अभी सुना है. चलें, हाँ, ये टेलीफोन जो आपके घर में लगी हुई है, इसको इसके जिस नेटवर्क से लगी हुई है उसको PSTN कहते हैं. आसान हो गया बात. सबके घर में PTCL की या नयाटेल की या स्टॉर्म फाइबर का फोन कनेक्शन मौजूद है. इस फोन लाइन को, इस फोन नेटवर्क को PSTN भी कहते हैं और POTS भी कहते हैं, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम या पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क. अब बात समझ में आ गई? तो आपने देखा जरूर हुआ है कि आपके घर के आसपास आपने देखा. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप कहेंगे हाँ ये सारी चीजें तो हमने पहले से देखी हुई है, इनमें से कोई चीज भी पुरानी तो नहीं है. ठीक है, तो होता क्या है जेंटलमैन, आपकी मिसाल के तौर पे ये टेलीफोन एक्सचेंज है. फॉर एग्जांपल, आपने अगर पेशावर में है, आप में से एटलीस्ट सब के सब लोग, इसमें मैं एग्री कर सकता हूं कि सब के सब लोग पेशावर के रहायशी नहीं है तो कम से कम पेशावर में उनकी यूनिवर्सिटी है तो वो पेशावर में देखा हुआ है. आप सबने खैबर रोड जो चीफ बर्गर है ये तो देखा होगा, वहां तो बर्गर खाने तो कभी ना कभी गए होंगे. क्या ख्याल है मंसूर, बाबर? यस सर. तो अगर इस चीफ बर्गर के सामने कभी गौर किए, क्या है चीफ बर्गर बिल्कुल ऑपोजिट, टेलीफोन का एक ऑफिस है यहाँ पे. अब वहां से गुजरे, जी याद आ गया ना, वहां पे टेलीफोन का ऑफिस है. इस तरह के ऑफिसेज पेशावर में मुख्तलिफ जगहों पे हैं. मिसाल के तौर पे अगर आपने LRH देखी है तो उसके सामने भी आपने एक टेलीफोन का ऑफिस देखा है. इसी तरह अगर आपने रेलवे स्टेशन कैंट देखा है तो उसके सामने भी आपने एक टेलीफोन ऑफिस देखा है. इस तरह का जो लोग तातारा पार्क देखा है फेज 3 में, वहां भी आपके सामने टेलीफोन ऑफिस है. इसको हम कहते हैं सेंट्रल ऑफिस, इसको हम कहते हैं टेलीफोन एक्सचेंज. अब बात समझ आ गई? मुझे आपकी तरफ, ओके जी. तो इस टेलीफोन एक्सचेंज से ये अगर मैं इसको कह दूं सेंट्रल ऑफिस, CO सेंट्रल ऑफिस, इससे अंडरग्राउंड केबल चलती है. अंडरग्राउंड के लिए मैं UG लिख रहा हूं. अंडरग्राउंड केबल चलती है और वो अंडरग्राउंड केबल
आपके घर के पास कहीं पे पहुंच जाती है। यहाँ पे केबल बाहर निकलती है जमीन से, और यहाँ पे एक बॉक्स लगा हुआ होता है जिसको नॉर्मली सेंटर क्या कहते हैं, कैबिनेट, डिविजनल कैबिनेट। तो ये केबल हो सकता है 300 पेयर की हो सकता है 600 पेयर की हो सकता है 800 पेयर की हो। तो यानी कि एक केबल के अंदर, एक मोटी केबल के अंदर बहुत से पेयर्स, यानी कि फोन लाइंस कह लें। पेयर्स का मतलब है फोन लाइंस आपके घर के तरफ चलती हैं, और इस डिविजनल कैबिनेट के ऊपर ये पूरी वायर एक एक करके यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। फिर क्या होता है, यहां से छोटी केबल फिर निकलती है और वो भी अंडरग्राउंड आती है, और आपके बिल्कुल करीब, घर के करीब एक पोल, एक टेलीफोन पोल लगा हुआ होता है। टेलीफोन पोल लगा होता है। ये तो अगर नहीं भी देखा तो अभी घर से बाहर निकले तो जरूर देखिएगा कि आपके घर के बाहर ये टेलीफोन वालों ने पोल लगाया हुआ है। बिजली का जैसे पोल होता है, इस तरह टेलीफोन का भी पोल होता है, और इसके ऊपर एक या एक से ज्यादा छोटे छोटे बॉक्सेस लगे हुए हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कहते हैं। और इस जिसके घर में भी टेलीफोन लगा है, यहां से एक काली रंग की तार निकलती है हवा में, और आपके घर के अंदर, ये आपका घर है, यहाँ पे हम उसका तार को गिरा देते हैं, और इसके आगे लाइनमैन साहब आपके घर में टेलीफोन का कनेक्शन लगा देता है। ये सारा कुछ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया जेंटलमैन, ये है पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। बात समझ में आ रही है? यस सर। वेरी नाइस। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो फिर यहाँ पे आपका जो टेलीफोन लगा हुआ है, अब मैं जरा इसको बड़ा करके यहाँ बना दूं, ये आपका टेलीफोन लगा हुआ है जिसके ऊपर आप हेलो बोलते हैं। ये हेलो जो आप बोलते हैं, ये एनालॉग है या डिजिटल? एनालॉग और डिजिटल में तो फर्क पता है ना? आपने डीएलडी पढ़ी हुई है, आपने डीएलडी पढ़ी हुई है, आपने ऐसे कई सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो आपने डीएसपी पढ़ी हुई है, तो कम से कम आपको ये तो पता होगा कि एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क है। यानी शॉर्ट में चले, मेरा इस वक्त, मैं अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो शॉर्ट में मैं ये कह देता हूं कि अगर डिजिटल है, अगर कॉन्टिन्यूस सिग्नल है तो ये एनालॉग है। अगर ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल है तो इट इज एनालॉग, और अगर ये डिस्क्रीट टाइम्स पे है तो वी कॉल इट, और उसका डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड है तो वी कॉल इट डिजिटल। यही है ना? यस सर। ठीक है जी। अगर ये बात आपने मेरी मान ली तो आपकी जो हेलो है यानी वॉइस है, ये आप मुझे क्या बताएंगे कि एनालॉग है या डिजिटल है? सर एनालॉग होगी। एनालॉग है। आपकी जो वॉइस है वो एनालॉग है। सर और अगर इसलिए आप जी बोलें। सर एनालॉग इसलिए हो कि इसमें जो चेंजेस आते हैं ना, एम्पलीट्यूड कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है ना, इसलिए सर। नहीं, कॉन्टिन्यूस है। अगर मैं वॉइस सिग्नल आपको अभी उस पर दिखा रहा हूँ, वॉइस सिग्नल स्क्रीन पे अभी आ जाएगा। अब ये आप मिसाल के तौर सर पे आपका कंटिन्यूस वॉइस का मीन सिग्नल है, एनालॉग है ना? एनालॉग है। ये आपकी, अगर आपकी वॉइस को मैं कैप्चर कर लूं और आपको फिर दिखाऊं तो आपकी वॉइस कुछ इस तरह का सिग्नल है, तो ये डिजिटल नहीं है, एनालॉग है। हर वक्त है, और हर वक्त इसका एम्पलीट्यूड मुख्तलिफ है, तो इट इज ए कंटिन्यूस सिग्नल। सर मैं भी कहता हूँ एनालॉग। जी, सर एनालॉग है सर। एनालॉग है जी, बिल्कुल एनालॉग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिग्नल अगर एनालॉग है, वेरी राइटली फवाद सर ने कहा कि एनालॉग सर, वेरी नाइस। अगर ये सिग्नल एनालॉग है तो फिर मैं वापस अपने व्हाइट बोर्ड पे जाता हूं, तो इससे पता ये चला कि आप यहां से एक एनालॉग सिग्नल जनरेट करते हैं। आप यहां से एक एनालॉग सिग्नल जनरेट करते हैं जो कि इस वायर के जरिए, इस वायर के जरिए, जिसको ड्रॉप वायर कहते हैं, ड्रॉप वायर के जरिए डीपी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे जाता है। फिर ये इस अंडरग्राउंड केबल के जरिए डिविजनल कैबिनेट पे पहुंचता है। फिर ये डिविजनल कैबिनेट से फिर अंडरग्राउंड केबल के जरिए सेंट्रल ऑफिस पे पहुंचता है। तो सेंट्रल ऑफिस में इस जगह पे जो सिग्नल पहुंचेगा, जो इस जगह पे, यानी कि अगर मैं अपने कलर को चेंज कर दूं, अगर कलर को मैं चेंज कर दूं तो यहां से जो सिग्नल चला वो एनालॉग था, यहां जो सिग्नल पहुंचा वो कौन सा था?
जी, यहाँ जो सिग्नल पहुंचा है वो कौन सा है? एनालॉग सर। एनालॉग। लाजमी तौर पे जब एनालॉग भेजा तो एनालॉग पहुंचेगा। इसका मतलब है कि सेंट्रल ऑफिस टेलीफोन एक्सचेंज हमसे हमेशा एनालॉग सिग्नल मांगती है। अब जब इंटरनेट आया तो अब आपने अपने घर में टेलीफोन लाइन के साथ साथ, टेलीफोन सेट के साथ साथ एक अदद कंप्यूटर रख लिया। ये मैंने ब्लैक में बना रहा हूं, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है। जी, अगर ये कंप्यूटर है तो जेंटलमैन, आप में से मुझे कौन बताएगा, आप में से मुझे कौन बताएगा कि ये कंप्यूटर एनालॉग है कि डिजिटल है? जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, कंप्यूटर क्या है? सर कंप्यूटर तो डिजिटल है ना, कंप्यूटर डिजिटल है। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से मेरा व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है कि आपका कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस है। अब मसला ये है कि आपकी टेलीफोन एक्सचेंज, क्योंकि ये डिजाइन हुई हुई है वॉइस के लिए, ये डिजाइन हुई हुई है वॉइस के लिए, तो इबादुर रहमान, ये कंप्यूटर, ये तो डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसके रास्ते में एक और डिवाइस ऐड कर दी जिसको हम कहते हैं मॉडेम। ये जो मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा था मॉडेम का, ये मॉडेम हमने ऐड कर दिया और इस मॉडेम के थ्रू हमने इसको उसी डीपी के साथ कनेक्ट कर दिया जो कि इसको डीपी पे लेके जाता है, यहाँ पे लेकर। और यहाँ इसका फायदा क्या है, क्योंकि आपने देखा कि आपसे टेलीफोन एक्सचेंज सेंट्रल ऑफिस कौन सा सिग्नल मांगता है? एनालॉग सिग्नल मांगता है। वो डिजिटल के लिए तैयार ही नहीं है, बना ही नहीं है डिजिटल को रिसीव करने के लिए। तो मॉडेम का काम ये होता है कि डिजिटल कंप्यूटर से लेकर उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर दे, ताकि एक्सचेंज को ये मसला ना हो कि कभी तो डिजिटल आता है कभी एनालॉग आता है। बात समझ आ गई? तो इसी तरह जब टेलीफोन एक्सचेंज को डिजिटल एनालॉग सिग्नल आपकी तरफ भेजती है, ये सिग्नल भी आपके मॉडेम पे आता है, एनालॉग सिग्नल, ये इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है और ये डिजिटल सिग्नल आपके कंप्यूटर को एक्सेप्टेबल हो जाता है, ये कंप्यूटर के लिए एक्सेप्टेबल हो जाता है। बात समझ आ गई? तो यू विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडेम, हम तकरीबन, मॉडेम तो जो लेटेस्ट मॉडेम था वो 56K का था, ये मॉडेम तो 56K का था, ये मॉडेम तो 56K का था, लेकिन ये मॉडेम तो 56K का था, लेकिन हमें इस मॉडेम के जरिए, मॉडेम को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मॉडेम का, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ आ सके। तो हमने इस मॉडेम के जरिए अपने, और ये टेलीफोन एक्सचेंज फिर आगे किससे कनेक्टेड थी? ये टेलीफोन एक्सचेंज आईएसपी के साथ कनेक्टेड थी। तो यूं आईएसपी अपना जो सिग्नल देती थी सेंट्रल ऑफिस के जरिए हमारे घर पे पहुंच रहा था, एनालॉग सिग्नल था, डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता था और कंप्यूटर को दे देते थे। इस तरह हमें डिजिटल सिग्नल, हमें हमारे कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट हासिल हो गया। और ये जो कुछ मैंने आपके सामने बनाया है, दैट वाज एन एक्सेस नेट, दैट इज एन एक्सेस नेट। जी, एनी क्वेश्चन? सर ये फुल वायर जो होती है उसमें 3 वायर्स होते हैं ना, एक प्रोटेक्शन के लिए होते हैं और एक मोडेम और दूसरा टेलीफोन के लिए, लेकिन इसमें जब एक भी मतलब खराब होती है तो दोनों काम छोड़ते देते हैं। आपकी बात मुझे क्लियर नहीं हुई। जो टेलीफोन लाइन से आपके घर पे केबल आती है वो ड्रॉप वायर होती है और उसके दो यस चीजें होती हैं बस। यस सर, 2 होते हैं। इसमें जब एक भी खराब होती है ना सर, तो फिर वो दोनों काम नहीं करते। नहीं, वो तो आपको पता है ना कि अगर आपने टेलीफोन की वायर कभी देखी है तो उसके लिए एक क्लोज पाथ होना जरूरी होता है, और अगर एक वायर भी उसमें से टूट जाती है तो आपका बल्ब नहीं जलता। ऐसा ही है ना? यस सर। तो बिल्कुल इसमें भी तो जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल एक सिग्नल है, ये जो सिग्नल आपकी तरफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जेंटलमैन, 10 मिनट के बाद ये कनेक्शन मुझे बता रहा है कि ड्रॉप हो जाएगा, और लेकिन आपने जाना नहीं। मैं दोबारा 10 मिनट में ड्रॉप होगा तो 11वें मिनट में मैंने दोबारा ये कनेक्ट किया होगा, तो आपने कहीं जाना नहीं है। ठीक है?
यस सर सर। ओके, तो दो तारे देखें ना, अगर ये आपका घर की आपके एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये दो पेयर्स आते हैं, ये लेट करें बल्ब है, बल्ब के साथ लगते हैं एक पेयर, सॉरी, और ये दो वायर्स आपके सॉकेट में लग जाती हैं, ये दो वायर्स आपकी सॉकेट में, दोनों का होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी ड्रॉप हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो आपका बल्ब ग्लो करना छोड़ देता है। बिल्कुल उसी तरह टेलीफोन में भी है, अगर एक वायर बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपकी टेलीफोन ही खत्म हो जाएगी। इज इट फाइन? यस सर। ओके, तो ये तो था मॉडेम, लेकिन इसकी सर सबसे इसका बड़ी, मतलब, जी बोलें। सर मतलब मोडेम का सिर्फ कन्वर्जन होता है एनालॉग टू डिजिटल। कन्वर्जन है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, अब इसमें जो दो डिसएडवांटेजेस थे, इसमें इस मेथड का एडवांटेज तो ये था कि आपको इंटरनेट घर पे मिल गया, लेकिन आपके पेरेंट्स में, आपने डेफिनेटली ये इस्तेमाल नहीं किया हुआ, लेकिन आपके पेरेंट्स ने ये डेफिनेटली इस्तेमाल किया हो, ठीक है। तो या आपके कोई बड़े मामू चचा वगैरह, उन्होंने ये चीजें इस्तेमाल की हुई हैं, ये हमारे वक्तों की का कॉन्सेप्ट था। इसमें जो दो खराबियां हैं, दो डिसएडवांटेजेस हैं, वो एक तो ये था कि जब आप, एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि स्पीड स्लो थी, स्पीड स्लो थी, ज्यादा से ज्यादा 6 to 8 किलोबिट पर सेकेंड हमें मिल रहा होता था। आजकल के दौर में 6 to 8 किलोबिट पर सेकेंड इज नथिंग। नंबर 2 जो इसका डिसएडवांटेज था वो ये था कि जब आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते थे, जब आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते थे, तो आपकी ये हेलो खत्म हो जाती, टेलीफोन नहीं काम करती थी, बल्कि बिजी शो होती थी। तो कंप्यूटर पे तो आप घंटों इस तरह लगाते हैं, जैसे देखें ना अभी आपके मेरे साथ क्लास है, तो तकरीबन हम घंटा डेढ़ इसमें बिजी रहेंगे। तो अगर ये टेलीफोन के थ्रू बिजी हो जाती, और उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं थी, तो लोग बड़े तंग होते थे कि जी एक ऐसा सिस्टम लग गया है कि लोग इंटरनेट लगा लेते हैं और फोन जो होती है वो अवेलेबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। तो ये दो डिसएडवांटेज थे कि एक स्पीड कम थी और एक वन सर्विस एट ए टाइम थी, वन सर्विस एट अ टाइम, या हेलो यानी या वॉइस या डेटा, ईदर वॉइस और डेटा, नॉट बोथ। जी, जवाब मिल गया, समझ आ गई कि इसके दो डिसएडवांटेजेस क्या थे? यस सर। एक तो इसकी स्पीड कम थी, और नंबर 2 एट अ टाइम वन सर्विस काम करते वन सर्विस होती थी सिर्फ, या तो आपने हेलो कर रहे होते थे तो डेटा नहीं, यानी कि इंटरनेट नहीं, और इंटरनेट था तो हेलो नहीं। तो ये इस वजह से ये, और इससे कंपनी भी, लाजमी तौर पर कंपनी भी खुश नहीं थी, क्योंकि इनिशियली तो ये इंटरनेट लेट करें 2 घंटे के लिए लगा रहा, तो 2 घंटे तक ये ना कॉल करेगा ना इसको कॉल आएगी, तो कंपनी को पैसे कहां से मिलेंगे, कंपनी लॉस में जाती है, उसको रिटर्न, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिलता। तो ना कंपनी भी इस मेथड से खुश नहीं थी और यूजर भी इससे खुश नहीं थे। इज इट क्लियर नाउ? यस सर, वेरी क्लियर। ओके जी, फिर इसका तोड़ आया, एंड तोड़ था एडीएस है, ठीक है। although कि मैं आपसे सबसे ये कहूंगा कि अपने दोस्तों को जो भी इस क्लास में मौजूद हैं उनको बताएं, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल से हार्डली नो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, जबकि क्लास में जो इनरोल्ड है वो 20 से ज्यादा हैं, तो वो क्यों नहीं क्लास लेते, दैट इज बैड। तो लाजमी तौर पे अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग दे भी दूं, वो मजा जो कि आपको लाइव में मिलता है वो रिकॉर्डिंग में नहीं मिलता। तो इसलिए उन तक अगर आपके दोस्ती कॉन्टेक्ट्स हैं तो उनको बताएं कि क्लास में आए, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन। सर ये मॉडेम जरा दोबारा गो थ्रू करें इस पे सर, मुझे थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया इसलिए। जेंटलमैन, मॉडेम का हमने ये बताया कि मॉडेम एक ऐसा, हमने टॉपिक ये शुरू किया कि हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स थे, हम चाहते हैं इंटरनेट से कनेक्टिविटी, हमारा मसला ये है कि हम इंटरनेट से कनेक्टिविटी चाहते हैं, आम यूजर इंटरनेट चाहता है, वो यूजर आप भी हो सकते हैं। अब जेंटलमैन हमने कहा कि इसके लिए जो ऑर्डिनरी यूजर है वो इन 7 तरीकों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकता है, जबकि इंटरप्राइज, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, ये 3 मेथड में से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अब हमने इस नंबर 1 पे स्टार्ट किया कि मॉडेम कैसे काम करता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने पहले
थोड़ा सा आपको PSTN एक्सप्लेन किया कि पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क क्या भला है, जिसको पॉट्स भी कहते हैं। हमने कहा कि जी व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? इबादुर रहमान। ओके, बात कोशिश किया करेंगे टाइम पे आया करें, ठीक है, क्योंकि इससे और लोगों का भी टाइम जाया होता है। तो इबाद हमने कहा कि अगर आपने पिशावर के रहने वाले हैं या पिशावर के आसपास के भी हैं, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि चीफ बर्गर एक आपने देखा होगा, चीफ बर्गर यूनिवर्सिटी रोड पे, इसके सामने एक ऑफिस है, बिल्कुल सामने, अगर नहीं भी कभी गौर किया तो अब गुजरते हुए जरूर देखिएगा, टेलीफोन का ऑफिस है। इसको हम कहते हैं सेंट्रल ऑफिस, या इसको हम कहते हैं टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज। तो ये टेलीफोन एक्सचेंज जिसको हम सेंट्रल ऑफिस कहते हैं, इससे मुख्तलिफ तारें निकलती हैं अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर। ये तारें गुजरते हुए हमारे घर के आसपास आ जाती हैं, और वहां एक अलमारी चीज लगी होती है जिसको डिविजनल कैबिनेट कहते हैं। ये डिविजनल कैबिनेट से फिर तारें, छोटी छोटी तारें निकलती हैं अंडरग्राउंड, ये भी होती हैं, और हमारे घर के बिल्कुल करीब टेलीफोन का पोल लगे हुए होते हैं। इस पोल पे एक छोटी सी डब्बी लगी होती है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कहते हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से काले रंग की एक तार निकलती है जिसको ड्रॉप वायर कहते हैं। ये वायर आपके घर पे ड्रॉप कर दी जाती है, और ये तार आप अपनी टेलीफोन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और यूं आप यहाँ से हेलो करते हैं, और ये हेलो आपका सेंट्रल ऑफिस पहुंच जाता है, और सेंट्रल ऑफिस के साथ पूरी दुनिया कनेक्टेड है। इस तरह आप किसी को भी कनेक्ट के लिए कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारी जो वॉइस है वो, मुझे आप लोगों ने बताया कि एनालॉग है। लाजमी तौर पे एनालॉग सिग्नल अगर हमारे घर से चलेगा, टेलीफोन से निकलेगा, इस वायर के जरिए पोल पे पहुंचेगा, पोल से डीपी से होते हुए, अंडरग्राउंड केबल से होते हुए कैबिनेट पे आएगा, कैबिनेट से अंडरग्राउंड केबल के जरिए सेंट्रल ऑफिस में पहुंचेगा। तो सेंट्रल ऑफिस में जो सिग्नल ये हमारा यहाँ पहुंचेगा, ये क्या होगा? लाजमी तौर पे आपने बताया एनालॉग। इसका मतलब है कि ये सिस्टम एनालॉग के लिए डिजाइंड है। लेकिन जब हमने इसके लिए टेलीफोन लगाया, सॉरी कंप्यूटर लगाया अपना, क्योंकि हमें इंटरनेट हासिल करने के लिए सुमैया क्या चीज की जरूरत थी? हमें इंटरनेट के लिए लैपटॉप लगाना था, हमने इसको डेस्कटॉप लगाना था, हमने इसको स्मार्टफोन लगाना था। तो इसके लिए ये डिवाइसेस जो हैं हमारे, ये डिजिटल सिग्नल पैदा करते हैं। अगर ये डिजिटल सिग्नल हम भेज देते हैं टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर, तो वो तो एनालॉग सिग्नल हमसे मांगता है, वो तो एनालॉग सिग्नल मांगता है। तो इसलिए हमने एक और डिवाइस ऐड किया जिसको कहते हैं मॉडेम। इस मॉडेम का काम यह है कि ये डिजिटल सिग्नल लेता है आपके कंप्यूटर से और उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, और टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ ये एनालॉग सिग्नल चला जाता है, और ये फिर एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट करके ASP को, ISP को दे दिया जाता है। यूं ISP और आपका कंप्यूटर का ताल्लुक, ISP मैंने पहले बताई, इससे पहले मैंने ये क्लियर किया कि आपकी ISP पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। आपकी ISP पूरी दुनिया के साथ, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कहा कि ये आपकी PTCL की ISP है, ये आपकी नयाटेल की ISP है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग फाइबर की ISP है। तो हर एक की ISP है, और ये ISPs एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और यूं ये पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, फेसबुक के साथ भी, यूट्यूब के साथ भी, जीमेल के साथ भी, सिस्को के साथ भी, सिग्मा, किसी भी नोकिया के साथ भी, वगैरह वगैरह एंड वगैरह। ओके, तो जी जनरल सर, ये मॉडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम सिर्फ नहीं करता सर? जी, इसका काम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन भी है, लेकिन इसका जो एक प्राइम मकसद है वो हमारे जो कंप्यूटर के लोग हैं हम, इसका जो काम है वो ये है कि A to D कन्वर्जन और D to A कन्वर्जन का। ओके सर। ठीक, तो जेंटलमैन इस तरह हमारे पास ये जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये सारा काम कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें दो डिसएडवांटेज थे। एक तो इसकी स्पीड काफी कम थी, तो यानी कि आजकल के हिसाब से, जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, तो मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको दिखाता हूं कि अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल डेल करूं और आपको टास्क मैनेजर में ले जाऊं, और टास्क मैनेजर में मैं परफॉर्मेंस में चला जाऊं, जो कि आप लोग भी जा सकते हैं और आपको इसकी वो भी मिल जाएगी। तो जेंटलमैन आप देख सकते हैं कि इस